Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 4th. Let's start chapter number 13 in Science, Earth and Solar System. Children, you know our Earth is a very special planet because it is the only planet where life exists. It is also called blue planet due to presence of 70% of water. Okay, in this chapter we are going to read about our Earth and the solar system. Okay, identify the planets in solar system, explain the composition of the earth, compare comprehend how day and night season are formed. Okay, in this chapter we are going all these things. First of all, the solar system. Look up at the night sky on a clear night. Look up at the night sky on clear night. On clear night without clouds. You will see the moon and a number of twinkling stars. When we look at the sky, we see a moon. At night, we see moon and thousand and number of stars twinkling in the sky. A star is a huge ball of hot gases. Star क्या है? बहुत बड़ी बॉल है किसकी? हॉट गैसेस की, which gives out heat and light. Star also gives us heat and light. The sun is also a star. The sun is a very big star. Okay. There are stars that are much bigger than the sun. जो stars हैं वो भी sun से कई बड़े हैं. Yet sun looks much bigger. क्यों बड़ा दिखता है? This is because it is the closest star to our planet Earth. We see sun near about us. हम लोग को sun अपने पास इसलिए दिखता है क्यों? क्योंकि it is closest to the earth. ये अर्थ के बहुत ही पास है, इसलिए we see the sun is much bigger. All star appears as twinkling planets in night sky. जो स्टार्स होते हैं वो और भी कई प्लैनेट्स में दिखते हैं रात में. स्टार appear to twinkle when we see them from the earth. जब हम लोग अर्थ से देखते हैं तो स्टार हम लोग को ट्विंकलिंग मतलब शाइनिंग इन आउट करते हुए देखते हैं. सरफेस because we view them through the layer of the earth atmosphere. ये आपको ट्विंकलिंग करते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि स्टार वो अर्थ की कई लेयर्स के बीच से दिखते, तो कभी वो दिखते कभी डिसअपेयर लगने लगते हैं. दे द थिक लेयर ऑफ द एटमोसफियर हैव एयर. जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसमें क्या रहता है? एयर रहती है. एंड डस्ट पार्टिकल्स, और उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं मूविंग थ्रू इट. ठीक है. द स्टार्स कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग डे टाइम. ड्यूरिंग डे टाइम वी कांट सी द स्टार. हम लोग दिन में स्टार को नहीं देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन. क्योंकि सन की खुद की लाइट बहुत ही ब्राइट है. ये देखिए उर्सा मेजर का कॉन्स्टिलेशन है. अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. एक पैटर्न बनाता है जिसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. उर्सा मेजर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन. उर्सा जो है वो एक कॉन्स्टिलेशन है. Our solar system consists of sun, planets, dwarf planets, moon and other objects. सन किस से बना हुआ है? वो सोलर सिस्टम किससे बना है? सबसे स्पेशल सन, then planets, then dwarf planets, moon and their object. The sun is the center of our solar system. जो sun है वो center है. The 8 planet over 60 moons. जो 8 planets हैं और उनके जो 60 moons हैं. Other heavenly object, उसके अलावा भी कई objects हैं. Good morning. Revolve around the sun on a fixed path called orbit. जो ये देखिए सन के सब लोग राउंड करते जा रहे हैं, तो ये जो उसका पाथ होता है प्लैनेट्स का, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं. 60 मून्स भी हैं, सब अलग अलग पाथ पे वो कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं. इस पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं.
See the picture of solar system. Draw the picture of solar system in your science copy. Life on the earth would not have been possible without sun. अगर सन नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ इज नॉट पॉसिबल, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ. हर तरीके की एनर्जी जो भी अर्थ पे है वो सन की वजह से. A planet is heavenly body that revolves around the sun. जो planet है वो heavenly body है जो कि सन के चारों ओर घूमते रहते हैं. And another other star और other stars भी. A planet does not have heat or light of its own. कोई भी planet के पास अपनी heat and light नहीं होती है. तो कहाँ से मिलती है? सन से. But reflect the light. क्यों? Of its closest star. Closest star कौन सा है? Sun. It appears as a shiny object in the sky. शाइनी ऑब्जेक्ट की तरह स्काई में दिखता है सन और अदर स्टार. देयर आर 8 planets in our solar system. our solar system में कितने planet हैं? 8. Starting from with Mercury, the closest to the sun. Next Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Pluto is now considered a dwarf planet. An easy way to remember the order to planet is by the mnemonic my से Mercury, V से Venus, efficient mother, just serve us noodles. Wow. My very affectionate mother, just serve us noodles. The first letter of each these words represent the first letter of the planets in the correct order. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The 4 planets near the sun are rocky or solid planets. जो 4 planets हैं जो near the sun है वो rocky and solid planets. The next 4 planets are made up of gases, are called giant planets. इनको हम लोग giant planet कहते हैं. ये किससे बना है? Gases से. The Earth. The Earth is very special planet. हमारी जो Earth है बहुत special planet है because it is only the planet that has an atmosphere and water. क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा है जिसके चारों ओर आपको एटमॉस्फेयर और वाटर मिलता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. ब्लू जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन इट. क्योंकि उसमें द वाटर है. इट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस विद अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. जो अर्थ है हम लोग की बहुत ब्यूटीफुल है बिकॉज देयर इज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड greenery plants is on it. The earth is about 5 billion years old. 1 billion is equal to 1000 million. Initially the earth was huge ball of dust and hot gases. अर्थ क्या है? बहुत बड़ा बॉल है किसका? डस्ट का और हॉट गैसेस का. It kept spinning from the millions of the year. As it spun, the outer surface grew hard and cold and formed the crust. As it spun, जैसे वो spun होती है, and the outer surface grew hard and cold formed the crust. Crust की वजह से होता है. This is where living organism are found. जहाँ पे कोल्ड है वहाँ पे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग रहते हैं. द अर्थ क्रस्ट इज अबाउट 30 किलोमीटर थिक. अर्थ क्रस्ट जो है वो 30 किलोमीटर थिक है, मोटी है. बिलो द क्रस्ट इज द हॉट मैंटल
which is made up of rocks. किससे बनी है? रॉक से बनी. It is about 3000 किलोमीटर थिक. कितनी थिक है? 3000 किलोमीटर. The center of the core is made up of molten rocks material. किससे बना है? Molten rock material. The core is extremely hot with the temperature of nearly 3700 centigrade. ये देखिए सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट है. नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 आउटर कोर, नंबर 3 इनर कोर. Draw this picture in your science copy. Layer of the earth. The core has great pressure. जो कोर होता है उसमें बहुत प्रेशर रहता है. When the molten rocks, जो rocks है molten, find a weak point, जरा भी weak point in the earth crust, earth के crust में पड़ता है, they break through it, उससे वो टूट जाती हैं. Hot boiling liquid called lava, उसमें से hot boiling liquid एक निकलता है जिसे लावा कहते हैं, along with the gases, जिसमें कई gases भी निकलते हैं, come out of the earth crust. किससे निकलती हैं? earth crust से. This is called volcano. इसको हम लोग क्या कहते हैं? volcano. अब rotation and revolution. All planets undergo two kinds of movement. जितने भी planet है उसके दो movement होते हैं. कौन कौन से? They go around the sun in a fixed orbit. This movement is called revolution. जो सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ पे घूमते हैं उसको रेवोल्यूशन कहते हैं. अर्थ टेक 365 एंड 1/4 डे टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 days and 1/4, 365 and 1/4 day to complete one revolution. This period is called a year. इसी को हम लोग ईयर कहते हैं. अर्थ ऑल्सो स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस. वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है. एक्सिस का मतलब आप अपने खड़े होके एक ही जगह पे अपने चारों तरफ घूम लीजिए. और रेवोल्यूशन क्या है? मम्मी को बीच में खड़ा कीजिए और उनके चारों तरफ घूमिए. ये रेवोल्यूशन है. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. अपनी ही स्पिन्स पे अराउंड करना. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कहाँ से घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट. द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन. एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है. फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए. द अर्थ एक्सिस इज tilts angle 23.5. The earth have taken 24 hours to complete one rotation. One rotation complete करने को 24 hours लगते हैं. और वो कितने एंगल पे वो हुई है? 23.5 डिग्री एंगल पे. और जो इमेजिनरी लाइन है वो कहाँ ड्रॉ है? इमेजिनरी मतलब कि वो एक्चुअल में नहीं है, कि इमेजिनरी लाइन है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. Day and night on the earth caused because of the rotation of the earth on its axis. अपने axis पे rotation होने से ही day and night बनता है. Draw this picture also. This whole chapter is very important. Change of season. There is another imaginary line that runs throughout the center of the earth at an angle of 90 degree on its angle. एक और इमेजिनरी लाइन है. दैट रन द सेंटर. उसके सेंटर पे. किसके? अर्थ पे 90 डिग्री एक्सिस पे. ठीक है. दिस इज नोन एज एक्वेटर. इसको हम लोग एक्वेटर कहते हैं. डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल लेवल्स. दो लेवल्स में डिवाइड करता है अर्थ को. The upper half is called North Hemisphere and the lower part is called the Southern Hemisphere. The tidal axis of the Earth is revolution round Sun cases of the season. When the North Pole is tilted toward the Sun, North Hemisphere receive direct sun rays. ये आपको समझना होगा कि ये देखिए जैसे ये अर्थ है. या विदों ने ऐसे किया
तो ये ऐसे से अपने में ही घूम रही है। अब इसको ऐसे भी बांट दिया। अब जिस तरफ सन पास में होगा वहां समर होगा, जहां सन दूर होगा वहां पे विंटर होगा। ये ठीक है। Okay, children. It is result in hotter and longer days. ये इसी से hot और longer day बनते हैं। This is the summer season for the northern hemisphere. Northern hemisphere में इस समय क्या होगा? समर सीजन होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड साउथ पोल टिटल अवे फ्रॉम द सन। अब वो साउथ पोर्शन है जो बहुत दूर चला गया सन से अब। सो द साउथर्न हेमस्फीयर रिसीव स्लैंटिंग सनरेज। अभी क्या था वहां पे कैसे पड़ी थी? डायरेक्ट सनरेज। यहाँ पे अब क्या हो गया? अब स्लैंटिंग में पड़ने लगी है। द डेज आर शॉर्टर एंड कूलर है। अब क्या है? यहाँ के डेज शॉर्ट है और ठंडे है, कूलर है। इट इज विंटर इन साउथर्न हेमस्फीयर। अब क्या होगा? साउथर्न हेमस्फीयर में क्या हो जाएगा? विंटर होगा। एज द पोजिशन ऑफ द पोल्स चेंज ड्यू टू रेवोल्यूशन। पोल्स का चेंजिंग कैसे होती है? रेवोल्यूशन के थ्रू। सो डज द सीजन, thus both the northern and the southern hemisphere have summer and winter season during one revolution. एक रेवोल्यूशन में साउथ हेमस्फीयर और नॉर्थन हेमस्फीयर में विंटर और समर सीजन पड़ता है। द एक्वेटर रिसीव ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट। एक्वेटर पे भी सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट की पड़ती है थ्रू आउट द ये पूरे साल। द सीजन डज नॉट चेंज हेयर। यहाँ पे सीजन क्या होता है? चेंज नहीं होता। इट हैज समर सीजन थ्रू आउट द। इसमें सारा टाइम पे समर सीजन पड़ता रहता है। द इन बिटवीन विंटर एंड समर देयर इज स्प्रिंग सीजन। विंटर और समर के बीच में स्प्रिंग सीजन आता है। बिटवीन समर एंड विंटर इट इज ऑटम। समर से विंटर में जाने में ऑटम होता है। इंडिया हैज अनदर सीजन द मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन देखिए ये नॉर्थन और साउथर्न हेमस्फीयर है। अब देखिए जब समर है तो साउथ में क्या पड़ रहा है? साउथ नीचे है। देखिए ये ऑटम के बाद थोड़ा नीचे हुआ। ये साउथ नीचे है तो यहाँ पे समर है, समर है। ठीक है। अब समर के बाद क्या हुआ? थोड़ा घूम गया। अब क्या हो गया? द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब अब क्या हो गया? अब समर इधर हो गया और वो उधर हो गया। देखिए अब इधर क्या हो गया? अब समर नीचे आ गया, वो साउथर्न पोल नीचे आ गया, नॉर्थर्न पोल ऊपर चला गया। अभी तक क्या था? साउथर्न अंदर था तो समर यहाँ था। अब धीरे धीरे घूम गया, अब नॉर्थर्न इधर आ गया, अब नॉर्थर्न ऊपर आ गया। तो अब नॉर्थर्न में क्या क्या पड़ जाएगा? विंटर पड़ जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए ऑटम पड़ गया। ठीक है। This is your homework. Learn new words. Also write the chapter of the summary of the chapter. Look at the exercises of the chapter. हो गया? Okay, this is for you. Solar system and Earth, Sun, movement. Yeah, वो planet name है I think नीचे। हाँ, और यहाँ season, rotation, revolution, sun, planet, moon, draft, planet। ठीक है। अब now the question answer of the chapter.
Okay, children, our chapter number 13 has been finished. Good day and complete your work.